नमस्कार। आज के कार्यक्रम में इस सेशन में आप सभी का स्वागत है और इस सेशन का नाम है हेल्थ एंड फिटनेस। हम सभी लोग हैं जो बचपन से कहीं ना कहीं सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। बचपन में भी सुना, जब बड़े हुए तब भी सुने, पढ़ा भी। लेकिन हेल्थ और वेल्थ क्या इज़ वेल्थ कैसे है और इसको हम अपने आचरण में, अपने जीवन में कैसे लाएं, इसको बहुत कम लोग अडॉप्ट करते हैं कि हेल्थ पे फोकस करना है। सबका फोकस होता है कैरियर पे फोकस करना है, सबका फोकस होता है स्टडी पे फोकस करना है, लेकिन हेल्थ पे कैसे फोकस होगा आज और फिटनेस को लेकर के पे क्या फोकस होगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं शीला जी और निखिल जी। आप दोनों का स्वागत है इस सेशन में। शीला जी, जब भी हम लोग हेल्थ की बात करते हैं और अगर आज का लाइफ स्टाइल देखें, खास करके अर्बन देखें, रूरल अर्बन देखें, तो जो फूड कल्चर है वो बहुत बदला है। लोगों का ध्यान पैक्ड फूड के तरफ, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, नॉन ऑर्गेनिक हो, फास्ट फूड के तरफ बढ़ा है। और पैक्ड फूड में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ोतरी आई है, फास्ट फूड में किस तरीके से लोग किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। और इवन अब थ्री ईयर सिटीज़ में आपको मैकडी, डोमिनोज, पिज़्ज़ा, हब सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसे बदलते जीवन शैली में कैसे खुद को बचा के रखें, कैसे हेल्दी रखें खुद को, कैसे फिट रखें। आप खुद डाइटिशियन है, इतना लंबा अनुभव रहा है आपका। मैं इस पे आपसे सुनना चाहूँगा। Yeah, thank you, Nishant, and thank you very much to organizer for giving me this opportunity. I think nutrition is a very important pillar of lifestyle, right? Nutrition is something that connects food and health. So unless we eat the right food, it's not possible to keep good health. So I think right from childhood, this has to be incorporated in every child's mind that eating healthy is important. And if we, as you said, there are so many packaged foods, there are so many ultra processed foods, very high in fat, very high in salt, very high in sugar. Those foods are only going to cause gut dysbiosis and which will lead to several lifestyle related diseases. So I think right from childhood, if we create habits that are going to build health, that itself as adults we continue to do that and we don't get fall to temptations. Second thing I believe is that in your homes, it always begins in your homes. So in your homes, keep healthy snacks and healthy foods in the refrigerator, in the kitchen. Traditional Indian diet is so healthy, very, very healthy, in fact, very well balanced. Keep healthy snacks, keep nuts, keep dry fruits, keep all those things if you're feeling hungry to eat. And today there are also very healthy snacks available in the market. Like makhana and all. Correct. Yeah, makhana has become very popular now because it's a very healthy snack. So keep healthy snacks which give you good amount of fiber, good amount of protein. Munching on those things, munching on fruits, munching on raw vegetables, all those are healthy. So keep healthy things in your kitchen and healthy foodstuffs in your fridge so that it becomes easy to maintain the healthy food system. And lastly, when you order, because I know everybody eats out today and everybody orders on Swiggy and Zomato and all those things. Today, even the food apps are coming out with healthy options. If you want to choose a salad, you can actually type in salad and it'll give you a lot of options in the food app itself. Yeah. So while doing that, if you have to order in, if you go out, just choose healthier options. And if it is your special day and you're eating something unhealthy, make sure you exercise much more. Definitely, a combination of both will definitely help. And today we talk about lifestyle medicine. Maybe I should give time for the next question. शीला जी, you talked about fitness. निखिल जी, फिटनेस फ्रीक, फिटनेस इंथुसियास्ट, एंटरप्रेन्योर, प्रोडक्शन, जो ओरल हेल्थ की जो चीज़ें होती है, जो ओरल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनका प्रोडक्शन का बहुत बड़ा काम है। वी विल कम टू ओरल हेल्थ लेटर निखिल जी, बट फिटनेस को लेके अलग अलग पैरामीटर्स है। फॉर समवन की फिटनेस मतलब सिक्स पैक होना, फिट दिखना। फिटनेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों को समझने के लिए, क्योंकि मान लीजिए कोई एक पतला व्यक्ति भी है लेकिन वो हम कहते हैं कि फिट है, तो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ फिटनेस, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पैरामीटर है। तो इन शॉर्ट इफ यू टॉक अबाउट कि व्हाट इज फिटनेस, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नमस्कार।
स्वास्थ्य में फिटनेस मेरे अनुसार आप रोजमर्रा के जीवन कार्य में बिना किसी कठिनाई के उनको पूर्णता कर सके, ये सबसे बड़ी फिटनेस है। जैसे जैसे हम एज होते हैं हम देखते हैं कि हम रोजमर्रा के कार्य, उठने बैठने, बच्चों को अगर हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उठाने में हमें समस्या आने लगती है। ये एक नोन फैक्ट है कि 30 साल की आयु के बाद मनुष्य के अंदर 0.5% के हिसाब से उसका मसल गिरने लगता है, और उसको मेंटेन करने का एक ही तरीका है कि आप अपने को किसी भी तरह के वेट ट्रेनिंग या व्यायाम में व्यस्त रखें। अगर हम संघ में भी देखें तो शाखा में शुरुआत में सबसे पहले लोगों को व्यायाम और खेल क्रीड़ा कराते हैं। जितने भी यंग बच्चे आते हैं या बड़े लोग होते हैं, उसका औचित्य एक ही है कि वो उनके स्वास्थ्य को बिल्ड करना चाहते हैं। मैं एक लाइन निशांत आपने जो बोली थी ना, हेल्थ इज वेल्थ, उसके बारे में यहाँ वर्णन करना चाहूंगा कि किस तरह से है, क्योंकि हम गुजरात में हैं और ये भारत का व्यवसाय में नंबर 1 राज्य है। यहाँ के लोगों को नंबर समझ में आते हैं। अगर आप रोज के स्वास्थ्य में अपना समय या पैसा लगाएंगे तो 100 से 500 रुपए लगेंगे, चाहे वो जिम जा रहे हैं, चाहे शूज ले रहे हैं, रनिंग के कुछ भी कर रहे हैं। पर अगर एक दिन अस्पताल भर्ती होना पड़ गया तो आपका 20 से 25 हजार रुपया रोज का खर्चा आएगा। इसमें हेल्थ इज वेल्थ। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे कि स्वास्थ्य क्या है, पतला होना या थोड़ा ओवरवेट होना, उसमें इतनी कठिनाई नहीं है। अगर आपने शरीर की ऊर्जा को, जो हमारा एक बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट है कि हम 2500 कैलोरीज रोज बर्न करें, उसको कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। क्योंकि खाली लंबा जीवन नहीं चाहिए, अच्छा जीवन भी चाहिए, और अच्छे जीवन के लिए स्वास्थ्य बरकरार रहना सबसे जरूरी है। निखिल जी, आपने बात की लंबा जीवन नहीं चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए। मैं शीला जी आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम लोग अभी 1 डिकेड पहले तक की बात करें तो कैंसर जो बीमारी होती थी बहुत रेयर सुनने को मिलती थी। अगर मैं गांव की बात कहूँ तो 5 गांव में एक आध लोग होते थे जिनको कैंसर होता था। बट अभी अगर हम देखें, अभी हाल फिलहाल की अगर 5 साल के, पिछले 5 साल के आंकड़े अगर देखें तो कैंसर डिजीज़ में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, और उसके पीछे की कुछ वजह है जो हम लोग जानते भी हैं। खाने में एडल्ट्रेशन किस तरीके से बढ़ी, हम आए दिन न्यूज़ सुनते रहते हैं कि यहाँ इतनी नकली पनीर पकड़ी गई, यहाँ मेवा पकड़ा गया, फलाना ठिकाना। हम लोग तमाम चीज़ें एडल्ट्रेशन को लेकर के, पेस्टिसाइड, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स कितना बढ़ा है, हम ये सब देखते हैं। ऐसे में ऐसी बीमारियों से कैसा बचा जाए, फूड हैबिट्स में किस तरीके की चीज़ों को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक की बात तो होती है लेकिन ऑर्गेनिक इज़ नॉट दैट चीपर कि सामान्य लोग भी उसको ले सकें, उसका उपयोग कर सकें। तो कैंसर जैसी बीमारियों और फूड हैबिट्स के वजह से जो बीमारियां बढ़ रही है, उससे बचने के लिए क्या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? Yeah, that's a very good question, I think. To prevent cancer, first of all, I think lifestyle is very important. Healthy lifestyle. So when I say lifestyle, it includes eating healthy, exercising regularly, sleeping adequately, managing your stress very well, keeping social connectedness, and avoiding substance abuse. So all of these come under lifestyle medicine, which is fairly new in India, but it's picking up very well now. Now, coming to food and cancer. Cancer is nothing but inflammation in the body, and that is caused by unhealthy eating habits, right? So, what we need to do is normally the high sugar, high fat, high sodium foods cause, particularly sugar and high fat foods cause a lot of inflammation in the body, and that over a period of time can lead to cancer. So we need to reduce the inflammatory foods, which means we need to eat the anti-inflammatory foods, which are nothing but fruits, vegetables, spices. I mean, Indian food is so well known for the use of spices. What you get in your kitchen, jeera, rai, methi, and what else? The masala powders, sambar masala, rasam powder,
and what else? Garam masala. Everything has spices and everything has antioxidants. Haldi, which we use regularly in our cooking, asafoetida, that is hing. All of these have anti-inflammatory properties which can be used regularly in our diets. But what has happened is we have moved away from eating Indian foods to eating Western foods. They don't contain the kind of spices and herbs that we use every day. So it's very important to not just eat vegetables, fruits, and include spices, but also eat a lot of fiber. And where does fiber come from? It comes from whole pulses like chana, tur, moong, matki, and rajma. All of these whole pulses have a lot of fiber. Nuts have a lot of fiber, like almonds, and seeds like til and sunflower seeds and alsi. All of them have a lot of fiber. So include all these foods in your daily diet. Fiber, vitamins, minerals, antioxidants, all these play a major role in keeping cancer away. Coming to pesticides, most of the pesticides which are present outside on the surface of vegetables and fruits get washed away if you wash it well before eating. Not after cutting, but before cutting. Before cutting. Before cutting, if you wash the vegetables and fruits, a lot of things which are present on the surface get washed away. So there is a reduction in the amount of pesticides which we eat, especially if you're consuming it raw. So that's another point to remember. One quick thing I want to know it from you, because you talked about कि आजकल बहुत सारे liquid हैं जो fruits and क्या कहते हैं vegetables को wash करने के लिए आते हैं pre-cutting. तो is it safe to use that liquid or some any kind of syrup कि कहते हैं कि उसको धोना चाहिए उससे? Right. So there are some people believe that using salt water or potassium permanganate solution, all those things help in removing the pesticides. Yes, it does to some extent, but it is not really necessary. Ordinary water or just salt water will remove the worms. It does not remove pesticides. So just dipping these vegetables and fruits and washing them in ordinary water itself is more than enough. We don't need to buy any solutions for it. निखिल जी, आपने कहा कि 30 के एज में, या हम कहें कि बाय ग्रोइंग एज 0.5 के हिसाब से आपका मसल लूज होने लगता है, और टू बिल्ड दैट मसल, टू कीप दैट मसल स्ट्रेंथन, हम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स का, कई बार जब आप जिम में जाते हैं तो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स का यूज़ करने के लिए आपको बताते हैं, आप कहते हैं इस तरीके की चीज़ें खाइए जो आपके प्रोटीन को मेंटेन करके आपका मसल बिल्ड रखेगा। और हम सभी जानते हैं कि मसल बिल्ड करने में प्रोटीन कितना हेल्पफुल होता है। ये जो एक नया चलन चला है कि पिछले एक दशक 2 दशक में कि इमीडिएट बॉडी बनानी हो या फिर प्रोटीन बैलेंस करना हो, उसके लिए हम जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, हाउ सेफ दे आर, और अगर सेफ है तो किस तरीके के सप्लीमेंट्स सेफ हैं, और अगर नहीं है तो उसको ना लेके हम क्या कुछ कर सकते हैं जिससे ये जो 0.5 की बात आपने कही उससे बचा जा सके? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप देखें तो आज से कुछ लगभग 70, 80, 90 वर्ष पूर्व तक ज़्यादातर लोग रोज़ बहुत एक तरह से नेचुरल व्यायाम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, पैदल चलते थे, जगह जगह जाते थे। खाली प्रोटीन लेना आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, अगर उसको आप बर्न करने के लिए इनफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करते अपने शरीर के साथ। और आपका जो प्रश्न है, मेरे हिसाब से नेचुरल प्रोटीन, चाहे वो चने हैं, हमारे पास टोफू है, पनीर है। मैं पिछले 30 वर्षों से व्यायाम कर रहा हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, और मुझे आज तक कभी किसी तरह की इसमें प्रोटीन की कमी नहीं लगी। मैंने कोई प्रोटीन एक्सटर्नली नहीं लिया, क्योंकि जो भी प्रोटीन ये एक्सटर्नली लेते हैं या बनाते हैं वो कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस यूज़ करके प्रोसेसिंग होती है। जिस भी चीज़ में प्रोसेसिंग हो जाएगी उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव्स डल जाएंगे जो अल्टीमेटली आपकी बॉडी को हार्मफुल रहेंगे। हाँ, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यवसाय में हैं, बॉलीवुड में हैं, मॉडलिंग में हैं, या जनरली आपका मन करता है कि आप अलग दिखे, जहाँ आपको सिक्स पैक दिखाना है, इमीडिएट चाहते हैं कि कुछ दिखे, तो आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं और उसका आपको इमीडिएट लाभ तो दिखता है आपके शरीर में। बट आजकल हम जैसे बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि कोई बॉडी बिल्डर था,
बहुत अच्छा। अभी एक रिसेंटली आई कोई 39-year-old सेलिब्रिटी था जिसकी बहुत अच्छी फिजिक थी, मैं नाम भूल रहा हूँ। उसकी मृत्यु हो गई अकस्मात, कारण मालूम नहीं पड़े, लोग कह रहे हैं हार्ट फेलियर हुआ। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आप अपने बॉडी को सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, नॉट जस्ट ड्रग्स बट ये प्रोटीन इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड food is also equally harmful for your body as any other substance abusers. Sila ji, I will come to you, but Nikhil ji, I want to ask you one more thing because I talked about कि आपका ओरल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है और जब हेल्थ और फिटनेस की बात हो रही है तो ओरल हेल्थ केयर पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। मैंने बिगनिंग में ही कहा कि जब हम हेल्थ की फिटनेस की बात करते हैं तो ज़्यादातर आउटर बॉडी की बात कर रहे होते हैं। ओरल हेल्थ केयर कितना इम्पोर्टेंट है इन सब के बीच में? In fact, oral health care is a big indicator of your overall body health. बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं आपके गम्स की इन्फ्लेमेशन, उसके कारण ये हो सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपके दांतों में कुछ और समस्याएं खड़ी होती है, उसका कारण है कि आपके अंदर बॉडी किसी तरह के सिम्टम्स दे रही है जिसको आप चेक कराएं। फूड बॉडी एनालिसिस कराएंगे तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें निकल के आती है। इनफैक्ट एक बड़ी स्टडी है जिसके अनुसार 38% हार्ट अटैक्स ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ बैड ओरल हेल्थ केयर। Okay. एंड दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड स्टडी। तो ये हेल्थ केयर के पीछे इतनी मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है और इसके वजह से भी कई सारी बीमारियां होती है। जी। शीला जी, हम लोग जब भी आजकल बाजार में डाइटिशियंस भी बहुत हो गए हैं और खास करके सोशल मीडिया डाइटिशियंस बहुत ज़्यादा हमें देखने को सुनने को मिलते हैं। हर दूसरी तीसरी रील जो है वो हेल्थ के बारे में होती है और क्योंकि हम कहते हैं कि वो बिकता है, इसी लोग देखते हैं वो बिकता है, इसलिए बाजार में बहुत डाइटिशियन भी हो गए हैं। कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, फलाना ढिकाना, 100 तरह की टर्मिनोलॉजी आजकल हम सुनते हैं और लोग उस हिसाब से बिना उसके बारे में जाने, बिना पढ़े और बिना किसी सही डाइटिशियन के कंसल्ट किए वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं आँख बंद के करके। और सबके लिए संभव भी नहीं है कि पर्सनल डाइटिशियन से कंसल्ट लेके सोशल मीडिया के थ्रू हेल्थ केयर और ये जो मैंने टर्मिनोलॉजी उसकी उससे किस प्रकार बचा जाए और बिना डाइटिशियंस के कंसल्ट किए हुए भी अगर हम कहें, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जो रूरल में रहता है भारत में, इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल लिविंग इन अर्बन, बट वहाँ पे कैसे लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया हर जगह है और वो एक वीडियो देखते हैं और उनको लगता है कि सुबह उठ के ये पानी पीने से वो ठीक हो जाएगा सब कुछ, या इस डाइट को फॉलो करने से, कीटो डाइट से। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आप पूछिए क्या कर रहे हैं तो कीटो डाइट पे हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें से कैसे बचा जाए और अगर कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसके पे सुझाव लेना चाहूँ। It's a great question, but very difficult to answer. How do we prevent social media from influencing us? I think it's a it's quite a big challenge today. And I think just yesterday or today I read that Karnataka is the first state in India to ban social media for children below 16 years of age. So I think that is one small but positive step in our country which has happened. And I think Andhra Pradesh also is going to ban for children below 12 years or something like that. So, but banning social media for adults is not going to happen. So I think we as adults, we need to be careful about, we are not going to stop using social media, but I think we need to question whether the person giving that social media gyan is really qualified or not. You can ask questions to that person, maybe message, DM that person and ask questions, and you will realize whether that person is qualified or not. So please do not follow blindly the social media. Most people on social media who give a lot of gyan are not qualified. Just a few minutes ago, we were having a discussion. Are all nutritionists dietitians? No. All dietitians are definitely nutritionists, but all nutritionists are not dietitians, which means as a dietitian, I can go into a hospital and work, or I can go to the field, public health and work. I can work anywhere where there is a requirement for a dietitian or a nutritionist. Whereas a nutritionist may have just a short-term course or 1-year course, not worked in any hospital, so she or he will not know how to tackle
people with individual problems. So please be very careful in always consult a qualified dietitian or nutritionist. But I totally understand everywhere we don't get dietitians and nutritionists easily. So for those people, the National Institute of Nutrition, which comes under ICMR, it is based in Hyderabad, they have come out with beautiful dietary guidelines. And the revised guidelines was published just last year, 2024. In 2024, there are the latest guidelines. It's called Dietary Guidelines for Indians. It is available on the National Institute of Nutrition website for anybody to download. And it is, I know it's in English, but it's probably available in other languages also. So please go through that, and they have very simple, basic steps that one can follow, what to eat, what not to eat. And in fact, I'm very glad that Nikhil ji brought up the protein supplement, and he said, don't take protein supplement, because that's exactly what the National Institute of Nutrition also says. The problem is Don't these take- influencers also promote products. Correct. Because they do the for pet contents. Yes. They go for pet contents. तो वो Yes. प्रोडक्ट को भी प्रमोट करते हैं बिना जाने कि Yes. क्या सही है क्या गलत है. Yes. Yeah. So there itself, you know that they're getting paid to promote all these products, and so you know that their income and their interest is somewhere else, not really in disseminating health information to everyone. So I think it's very important to differentiate between the qualified and the non-qualified people. Thank you. इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, भारत से ही ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरली हम पुराने प्राचीन काल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो अब गोरे लोग या वेस्टर्न वर्ल्ड उसको रीपैकेज करके भेज रहा है. जैसे हम हल्दी वाला दूध पीते थे, अभी स्टारबक्स ने उसका टर्मरिक लैटे करके एक वेरिएंट निकाला है, और वो उसको $8 का एक कप बेचते हैं. जो हमारी माएँ जब हम बचपन में कहीं चोट लग जाती थी, खेलते थे, पार्क में गिर जाते थे, तो हल्दी वाला दूध पिला के हमें ठीक करते थे. निखिल जी, क्योंकि अभी आपने वेस्ट की भी बात की, यू आर ऑल्सो अ फिल्म मेकर, और सिनेमा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सिनेमा, एडवर्टीजमेंट्स, अगर पिछले 3-4 दशक की बात करें तो कुछ प्रोडक्ट्स थे जिसको बहुत प्रमोट किया गया. अगर हम रिफाइंड ऑयल की ही बात करें तो रिफाइंड ऑयल को किस तरीके से मार्केट में लाया गया हम सभी जानते हैं, और उसको कितना प्रमोट किया गया कि वो हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, वो बॉडी के लिए कितना अच्छा है. लेकिन जो रिसेंट रिसर्च आए 4-5 साल पहले कि रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल, इनका बहुत बैड इफेक्ट है शरीर के ऊपर. तो इन सब प्रोडक्ट को जहाँ एक ओपन प्लेटफॉर्म है टीवी, जहाँ आप पैसे दे करके प्रचार कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स को अभी तक हम अगर कहें तो भारत में कोई पॉलिसी नहीं है इस तरीके की कि क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. आपने वेस्ट की बात की कि वेस्ट हमारी चीज़ों को बेचता है रीपैकेज्ड करके, तो कम से कम वेस्ट हमसे सीखता है. लेकिन वेस्ट में पॉलिसीज़ है कि जो गलत चीज़ें हैं उसको प्रमोट ना करें, एक तरीके से कह सकते हैं. कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं. यहाँ पे उस तरीके की पॉलिसी नहीं है. थ्रू सिनेमा में हम देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, उसके लिए आप पैसा दीजिए और वो प्रोडक्ट की किस तरीके से प्रमोशन होती है. उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट में तो प्रोडक्ट्स जो अनहेल्दी हैं स्वास्थ्य के लिए, उनको सिनेमा के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से प्रमोट ना किया जाए. इसको लेकर के सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप खुद बिजनेसमैन हैं, आप सरकार के अलग अलग स्टॉक होल्डर से भी मिलते हैं, आपका सिनेमा में भी काम है, आपका प्रोडक्शन में भी काम है. मैं इस पे आपसे सुनना चाहूँगा. देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स, क्योंकि सरकार या एक व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है. सिगरेट सबको मालूम है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल नहीं बिकना चाहिए, बिल्कुल, परंतु वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है. गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मद्य पदार्थ नहीं अवेलेबल, बट बहुत सारे राज्यों के लिए ये एक सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल है. तो ऐसा कहना कि उनका प्रचार ना हो या वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं होता, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी होता है. या एक नोटिफिकेशन दिया जाए, जैसे तंबाकू के लिए Exactly. नोटिफिकेशन है. तो जिस प्रकार आज हर सिगरेट के पैक के ऊपर वो इस तरह की फोटो छापते हैं कि जो खरीद रहा है उसके मन में कहीं ना कहीं एक व्यथा आती है कि नहीं, ये हो सकता है मेरे साथ. तो शायद उस व्यवस्था को इसी माध्यम द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर कोई उसका प्रचार कर रहा है ऐसे प्रोडक्ट का जिसकी
सेहत के लिए आगे आने वाले समय में हानिकारक होगा, तो साथ में जो नीचे एक स्टैट्यूटरी वार्निंग आती है, वो वार्निंग साथ साथ चले। फिल्मों में तो अब ये अनिवार्य हो गया है। अगर आप देखें, जब भी कभी कोई सीन आता है जहाँ सिगरेट पी रहे हैं या मद्य सेवन कर रहे हैं, तो नीचे एक वार्निंग लाइन आ जाती है। क्योंकि सोशल मीडिया के और जेनजी के टाइम में आप बच्चों को जोर जबरदस्ती से नहीं कंट्रोल कर सकते। उनको कंट्रोल करने का माध्यम केवल उनको अच्छे प्रकार से ये बताना कि इसके लाभ और इसके हानि दोनों पॉइंट्स क्या है। एंड हम अपने बच्चों के साथ भी जैसे कभी नेगोशिएट करते हैं, आजकल नेगोशिएशन होती है, तो हम उनको यही बताने की कोशिश करते हैं कि देखो, इसमें ये अच्छी चीज़ है, ये हानिकारक चीज़ है। अब आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। ज़्यादातर इस तर्क वितर्क के साथ वो समझ जाते हैं। अगर आप उनको बोलो नहीं करना, तो फिर या तो छुप के या वैसे वो करेंगे। Can I just add one हाँ, point please, to what please. Nikhil ji said? I think as far as food products are concerned, the packaged foods that are available, there's something called nutrition label. And along with the ingredients list, date, expiry date, manufacturing date, all those things, there's also the nutrition label. And today, the FSSAI has some guidelines which has to be followed. And the government is also trying to, rather, FSSAI is trying to implement uh, the I think the traffic signal, basically the healthy, healthy products and so not so healthy products, the star rating, health star rating. They're planning to, it hasn't come in as yet, but hopefully in the near future, some kind of a identification will be there. Like we have brown dot for non-veg and green dot for veg on packaged foods. Similarly, if some kind of an identification is provided in future, there's already discussion about this. So then it'll be easier for people to just look at the product and say, okay, this is not so healthy for me, so I won't buy this. This is healthy for me, it's got better rating, so I'll buy this. So hopefully that'll come in the near future. When we talk about health, mental health is another important aspect of it. और निखिल जी, मैं इस पर आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि बिकॉज ऑफ अगेन लाइफ स्टाइल, हर कोई कहते हैं कि बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है, काम हो ना हो बट दे आर बिजी, मोबाइल में हो, काम में हो, बिजी हैं। उसमें कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस, जो आप मोबाइल कंटिन्यू देखते हैं या काम की वजह से लैपटॉप देखते हैं, कुछ भी करते हैं, दो तीन चीज़ें जो आज बहुत कॉमन हो गई। मैं भी पत्रकार हूँ और उदय महारकर जी इस सेशन में होने थे, किसी कारण बस नहीं हो पाए, तो मैं उनसे ये प्रश्न पूछता, लेकिन फिर भी आप बिजनेसमैन हैं, आपकी भी ऑक्यूपेंसी बहुत रहती है, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, मैम आप भी डाइटिशियन हैं, एंग्जाइटी से, टेंशन से, जो कि अननेसेसरी आती है कुछ कामों के वजह से, जिसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं, तो थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू डाइट कैसे उससे डील करें? ये पहले निखिल जी और फिर मैम, आप इसको कैसे हेल्थ के मतलब एक्सरसाइज के माध्यम से डील कर सकते हैं, और आप फिर डाइट के माध्यम से, प्लीज। पहली चीज मैं आपके इस उसको एंडोर्स करना चाहूँगा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इज रियल। आज के संदर्भ में ये ज़्यादा रियल है, और उसका एक सबसे बड़ा कारण काफ़ी हद तक मैं सोशल मीडिया को मानता हूं। बिल्कुल, क्योंकि आज आप किसी भारत के दूर कोने में बैठे हुए बाकी भारत के लोगों से सोशल मीडिया पे उनकी लाइफस्टाइल को, जो सच है या झूठ है नहीं मालूम, देखकर प्रभावित होकर अपने आप मन में कुंठित हो जाते हैं। वो एक बड़ा कारण बनता है। चीजें जो उपलब्ध है, एज इट इज सेड, इट इज अ मटेरियलिस्टिक सोसाइटी टुडे। चीजें जो उपलब्ध है बाकी लोगों को, आपको ना होने के कारण कहीं ना कहीं वो आपका मन कुंठा से भरता है। सो इसके अगर हम देखें तो हमारे भारत की जो अपनी प्रथा चली आ रही है, योग है, उसमें प्राणायाम, अनुलोम विलोम के द्वारा हम सुबह अपनी मनोस्थिति को सुधारने का कई वर्षों से प्रयास और सक्सेसफुली अचीव करते आ रहे हैं। आज गोरे लोग या वेस्टर्न वर्ल्ड उसको पैकेज करके बॉक्स ब्रीदिंग करके बेच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
जबकि ये प्राणायाम हिंदुस्तान की खोज कितने वर्षों पूर्व की है। और मैं ये जानता हूं कि रोज सुबह 15 मिनट दिनचर्या शुरू करने से पहले प्राणायाम करने से किस तरह मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा भर जाती है। उस ऊर्जा से जो मेंटल विकास या जिसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बोल सकते हैं दूर कर होती है, ये केवल अनुभव करने से ही हो सकता है। शायद मेरे बोलने से लोगों को इतना मालूम ना पड़े। केवल दिन के 15 मिनट आप सुबह अगर प्राणायाम और अनुलोम विलोम एक बार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि उस दिन में आपके शरीर में ऊर्जा स्तर और आपके मस्तिष्क में कितनी क्लैरिटी है। द क्लैरिटी ऑफ थॉट वुड बी देयर फॉर यू टू प्रोग्रेस ऑन योर डेज वर्क। आप दिन में क्या दिनचर्या करना चाहते हैं वो बहुत स्पष्टता के साथ आप कर पाएंगे। शीला जी, what about diet? Yes, we today, I totally agree with what Nikhil ji said. I think if you start with pranayam in the morning, you don't even have to worry about stress the rest of the day. So I don't think, then you will automatically eat healthy, I'm thinking. But having said that, what we call gut-brain axis today is become the prime important subject for for everybody, especially in the healthcare. Because when we have stress in the mind, it directly affects the gut. And that hinders digestion, absorption of nutrients, and it can lead to a lot of other health problems. So, stress has a lot of negative impact on the gut, which in turn leads to a lot of inflammation. So, I think as far as food goes, it's very important to eat mindfully. So, when we are eating, not to get distracted by anything around us. Eating mindfully means we are using all our senses. We are looking at the food, we are listening to the sounds of the food, we are touching the food while mixing it, and I think India has a very good habit of eating with a hand, right? So, we are touching the food, we are tasting, we are smelling the food, and we are tasting the food. We are using all our senses and we are eating mindfully. So, a complete attention is on the food that we eat. So, what happens when we eat mindfully? We tend to eat less than what is required. We tend to choose the healthier options because we are paying attention to what we are eating, what is on our plate. We all know, I'm sure everybody knows what is good for health and what is not good for health. It's just that when we are eating, if we are looking at the television or if you're looking at the mobile or if you're working on the laptop, you're not paying attention to what you're eating, and therefore we don't know what food goes into our body, and that can create a lot of health problems. So mindful eating reduces the stress about eating and also helps in building better health. शीला जी की इस बात को मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। आयुर्वेद में बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि 60% से 65% पेट भर के खाएं, पूरा पेट भर के कभी मत खाएं। अगर आप 60 से 65% पेट भर के खाएंगे, आपके स्वास्थ्य में और खान पान में कभी तकलीफ नहीं आएगी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो दर्शक दीर्घा है उसमें ज़्यादातर युवा हैं और प्रधानमंत्री भी बार बार बात करते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन का बड़ा चंक है युवा है और युवाओं का हेल्दी रहना, युवाओं का फिट रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन से अगर हम मुख्य रूप से दो बातें कहें, अगर दो पॉइंटर्स निकालें कि क्या करना चाहिए, तो ईट माइंडफुली, जो शीला जी ने कहा ईट माइंडफुली, वो फॉलो करें। दूसरा 15 मिनट का प्राणायाम, इसको अपने बिजी शेड्यूल से जो हम कहते हैं उसमें एकोमोडेट करें। 15 मिनट प्राणायाम करें, 15 मिनट एक्सरसाइज करें और अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि इससे किसी और को लाभ नहीं होगा। ये ऐसी चीज़ है जिससे इसका लाभ आपको ही मिलना है और समय की पाबंदी है। फिर भी शीला जी, निखिल जी, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और ऑर्गेनाइज़र के मंच पे आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।